Good evening, each and everyone. After chambers of heart, today we are going to see about physiology of heart or the blood flow through the heart. So it is a physiology. So main physiology, what we see here is two types of blood circulation. One is systemic circulation, another one is a pulmonary circulation. So before going into a brief discussion, I would like to read this content. So blood flow through the heart. The two largest veins of the body, the superior vena cava and inferior vena cava, empty their contents into the right atrium. This blood passes via right arterioventricular valve into right ventricular, and from there blood is pumped out into the pulmonary artery. This pulmonary artery is the only artery in the body which carries deoxygenated blood. First I'm reading, after that I'll explain you in a diagrammatic form. So don't worry, I'm just reading the content. So at the opening of pulmonary artery, pulmonary valve is present which prevents backflow of the blood into right ventricle. It is also known as semilunar valve or tricuspid valve. After leaving the heart, the pulmonary artery divides into left and right pulmonary arteries which carry the blood to the lungs, where exchange of gases takes place as carbon dioxide is converted into oxygen. So CO2 blood is converted into O2 blood. After purification of blood in the lungs, two pulmonary veins, these are the only veins which carries oxygenated blood into left atrium. So blood then passes through left arterioventricular valve, mitral valve or a bicuspid valve into the left ventricle, and from there blood is pumped out into the aorta. The opening of aorta is guarded by the aortic valve. At the opening of aorta there are valves present which is called as semilunar or aortic valve. However, it should be noted that both atria contract at the same time and is followed by the simultaneous contraction of both ventricles. So this is a diagrammatic form here. So blue color indicates कार्बन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट से जब आप लोग देख रहे हो देखेंगे दिस इज़ अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो फ्रॉम लंग्स में जब प्यूरिफाई होके आता है, सो लेट्स से इज एन ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो लेट्स सी इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म. अभी तक मैं जो पढ़ी हूँ उसको मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी डायग्रामेटिक फॉर्म में. So let's see here at a diagrammatic form. आप लोगों को याद होगा कि parts of chambers of heart. So it's a rough diagram. So it is divided left side, right side, and then again a division is there in between both the sides. Right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. So here is a superior vena cava, inferior vena cava. Arch of aorta, pulmonary arteries, pulmonary veins. So please don't confuse, I'll explain clearly. हिंदी में भी एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगी. So I'll change the letter. Okay.
सी ये जो सुपीरियर वेना केवा है वो अपर पॉट का मतलब ऊपर जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जिस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड बोलते हैं। जिस ब्लड में ऑक्सीजन लेवल है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और दो टाइप्स ऑफ आर्टरीज है। आर्टरीज मतलब ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। उसके बाद वेन्स है जो CO2 डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। बॉडी में जितना भी 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स है, एक है आर्टरी और एक है वेन्स। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सप्लाई करते हैं और जैसे वेन्स हैं वो ओनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक। सो यहाँ पे आप जो देखेंगे सुपीरियर मतलब ऊपर, ये सुपीरियर वेना केवा जितना भी नेक में, हेड में और शोल्डर्स के पास जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको कैरी करके राइट एट्रियम को लेके आता है। जैसे ही ये जो इन्फीरियर मतलब नीचे लेग्स से, पेल्विक कैविटी से, एब्डोमेन से जितना भी वेस्ट ब्लड मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड जितना भी है उसको लेकर सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में एंटर होता है। मतलब इन्फीरियर वेना केवा से और सुपीरियर वेना ऊपर से दोनों मिलके राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंटर होता है। जब यहाँ डीऑक्सीनेटेड ब्लड रीच हुआ है, यहाँ पे 2 आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व है या ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। जब ये आर्टरी कंट्रैक्ट होता है मतलब क्लोज होता है, जितना भी ब्लड है यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड जब पुश करने के बाद जितना भी ब्लड है वो वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। ओके, व्हेन इट क्लोजेस, जब ये राइट वेंट्रिकल में आता है ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट मतलब जब वेंट्रिकल क्लोज हो जाता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स को चला जाता है। लंग्स, सो यही जो पल्मोनरी आर्टरी है हमारे बॉडी में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। मैं यहाँ पे बोली हूँ कि आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट हमारे शरीर में एक ही जो ये ब्लड वेसल है जो पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। फिर ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाता है। लंग्स में CO2 is converted into O2. CO2 is converted into O2 मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो भी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में चेंज होता है क्योंकि ऑक्सीजन CO2 is given and O2 is taken. So deoxygenated blood is converted into oxygenated blood in lungs. ठीक। फिर लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है, तो लंग्स से पल्मोनरी वेन्स, ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं यही जो पल्मोनरी वेन्स हैं हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। एक्चुअल में वेन्स डीऑक्सीनेटेड कैरी करते हैं, बट यही जो पल्मोनरी वेन्स हैं हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। एक्चुअल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट यही जो वेसल्स हैं, ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं, यहाँ पे ये वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स से लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है। ब्लड फिल हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे फिल हो गया राइट एट्रियम के अंदर। ये जब राइट एट्रियम क्लोज हो जाता है मतलब कंट्रैक्ट हो जाता है, ये जो ब्लड है पुश होके लेफ्ट वेंट्रल के अंदर आ जाता है थ्रू मिटल वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व और आर्टेरियोवेंट्रिकुलर वाल्व। जब ये कंट्रैक्ट होता है
राइट लेफ्ट एट्रियम जब कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड पुश होकर ये लेफ्ट वेंट्रल के अंदर आ जाता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल क्लोज होता है, ये पूरा ब्लड आर्च ऑफ आयोटा के अंदर चला जाता है। मतलब यहाँ पे एक ओपनिंग है जो आयोटिक वाल्व बोलते हैं, वो आयोटिक वाल्व से आर्च ऑफ आयोटा के अंदर चला जाता है। और आर्च ऑफ आयोटा इज अगेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वेज। मतलब ये आर्च ऑफ आयोटा से नेक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं, लंग्स को देते हैं, मतलब थोरैसिक कैविटी को, शोल्डर्स को। फिर जैसे ही आयोटा नीचे जब वो आता रहता है आर्टरी, ये जो आयोटा, ये लार्ज आर्टरी है इसलिए इसका नाम आयोटा बोलते हैं हम लोग। तो ये आयोटा नीचे जब आता रहता है तो दिस आयोटा इज कॉल्ड एज एन थोरैसिक आयोटा। थोरैसिक रीजन में जो आयोटा है उसको थोरैसिक आयोटा बोलते हैं। तो यहाँ पे जितना भी ऑर्गन्स है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देते हैं। फिर जैसे और नीचे आता है तो एब्डोमेन आ जाता है। तो जहाँ आयोटा एब्डोमेन में है तो उसको हम एब्डोमिनल आयोटा बोलते हैं। तो वहाँ पे जितना स्टमक है, स्प्लीन है, लिवर है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं। और नीचे आने के बाद लेग्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक मतलब पूरा बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसको हम सिस्टमिक बोलते हैं। और सेकंड वन है पल्मोनरी। पल्मोनरी मतलब ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड लंग्स को जा रहा है ना, और लंग्स से जो फिर वापस आ रहा है, ये सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। हमारे हार्ट दो टाइप ऑफ सर्कुलेशंस को हेल्प करते हैं। हार्ट हेल्प्स इन टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। फर्स्ट वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, फर्स्ट वन इज सिस्टमिक सर्कुलेशन ऑल ओवर द बॉडी, जो मैं अभी बताई हूँ कि इन्फीरियर वेना केवा से लेकर आयोटा से जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो पूरा मिला के सिस्टमिक सर्कुलेशन है। और लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स, उस पार्ट को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। ये जो फिजियोलॉजी है बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के इनकेस ये समझ में नहीं आया, जब हम लोग मिलेंगे फिर से मैं आप लोगों को समझाऊंगी ब्लैक बोर्ड के ऊपर। फिलहाल 2-3 times इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, इफ़ यू कीप ऑन लिसनिंग, यू विल अंडरस्टैंड। जब मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग खुद आपके एक बुक में ड्रॉ करते हुए आप लोग भी एक बार सर्कुलेशन सीखना, so that you will understand it more better. So this is a blood circulation in heart. So 2 types of blood circulation we have seen today: pulmonary circulation and a systemic circulation. So ये जो डायग्राम है आप लोगों का भी समझ में आएगा कि लेफ़्ट साइड जो है, राइट साइड क्या है। ये पूरा डीऑक्सीनेटेड है और ये पूरा ऑक्सीनेटेड है। मतलब लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है, देखिए यहाँ पे आयोटा फिर डिवाइड हुआ, हेड और आर्म्स को ब्लड दे रहा है। फिर नीचे जब आयोटा नीचे आता है तो थोरैसिक कैविटी में, उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी, फिर बेली, लेग्स, यहाँ पे दिए हैं बेली, लेग्स, पूरा बॉडी को ऑक्सीनेटेड ब्लड पास करते हैं। सो दिस इज़ एन सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड अ पल्मोनरी सर्कुलेशन। आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। और हार्ट को ऐसे में भी पूछ सकते हैं या फिर शॉर्ट। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। आप लोग बार बार इस वीडियो को देखें या फिर बार बार इसको सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कितने भी आप लोग देख चुके, कितने भी बार आप देखे हो या फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, सो जब हम लोग मिलेंगे मैं फिर से आप लोगों को समझाऊंगी, बट कोशिश करना समझने के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज़ अ ब्लड सर्कुलेशन टू द हार्ट। अभी तक हम लोग देखे हैं कि हार्ट के अंदर, मतलब बॉडी पूरा
हार्ट क्या क्या काम करता है, हार्ट के अंदर क्या सर्कुलेशन होता है। बट हार्ट को भी सर्कुलेशन चाहिए, हार्ट को भी ब्लड चाहिए, हार्ट को भी वीनस सप्लाई चाहिए और ब्लड सप्लाई चाहिए। तो वो है ब्लड सर्कुलेशन टू हार्ट। सो ये जो टॉपिक है हम कल डिस्कस करेंगे। आज बस यू जस्ट लिसन, ये जो मैटर है इसको लिखना और समझना। जितना भी मैं वो डायग्राम में समझाई हूँ यही है जो मैटर है पूरा। जैसे ये मैटर है उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को समझाई हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स you just ask me. I'll explain you again and again till you understand this. Thank you.